Hello, students. Today we are going to start our new chapter of geography, chapter number 4, and the chapter name is Water Resources. Okay, previously we learned about the land resources of India. Here we are going to learn about all the water resources. Okay, so first we'll start with the introduction of this chapter. So, as you all know, if we talk about on the Earth's surface, that is around the world, there are there is 71% of the Earth's surface covered with it, that is with water. But when we talk about the fresh water, it is only 3% of the total water. Before that, here is given. Do you think that what exists today will continue to be so far, or the future going to be different in some respects? Yes, of course, it can be said with some certainty that the societies will witness demographic transition. Obviously, like when we talk about anything, any resources of the world, then with the resources, all the things which are related to it will be going to change. Okay, even if we talk about the population transition, if we talk about the geographical, like the population is shifting to more and more uh, suitable places. Okay, there will be a technological advancement as well, but at the same time we'll find that there will be a damage for our environment, because as we are going to progress, we are going to just leave the mark or the scar which will cause the damage to the society as well as the world. Okay, so the most important thing in that, which is water resources, will be definitely be going to affect. Okay, now it will be a greatest challenge for everyone. Now, I have told you the statistics of the Earth's surface, which is covered with water. Water total 71, and fresh water is only 3%. Now, very small proportion of fresh water is effectively available for human use. From this 3%, if we go decrease this percent, we'll find that the fresh water which is actually used by human beings is more or less. It will change as and when the time will be running out. That is, time will be more and more, and we will go to the future. Okay, now there are also the disputes, or the, we can say, the fightings, some it goes on among the countries also. Okay, states or countries. Now, efficient use and conservation of water become necessary to ensure development. So, to save the water resources, the it is required that we should use it in an effective manner, as well as we can conserve the water. Now, as we are talking about the water resources of India, so we will look more in detail about it. Okay. Now, India in the world, we have already known the statistics. Now, in India, 2.45% of the world's surface area. Okay, India has. Okay, 4% of the world's water resources. Now, when we talk about the area of the water resources, we have this much percentage, 2.45. And when we talk about the world water resources, means in that 2.45% area, 4% of water is present in India itself. Okay, in those areas, if we compare to the world, 16% of the world's population. Okay, and we have also, that we are number one in the population. So definitely the demand of water resources and everything will be more and more. Total water available from precipitation. So now, if we talk about the rain, so rain or snow or hailstones, that is constituting the that precipitation, this will be in a yearly, it is 4,000 cubic kilometer. Now the availability from surface water and replenishable groundwater is 1869 cubic kilometer. Means whatever the groundwater, means under the surface, which is available, is this much amount, 1869. Just keep the statistics in mind. Suppose if it can come in your MCQ, that what is the percentage of India, okay, in the world surface area, so that 2.45 will be the answer. Now, only 60% can be put to beneficial use. From all these things, if we talk out of 100, if we compare, we can use only 60%. The total utilizable water resources in the country is only 122 cubic kilometer. Now, if we talk about the rainfall, 4,000. If we talk about groundwater, 1869. From these two, we can only use 1122 cubic kilometer of the water that can be utilized for different purpose. Other water, it cannot be taken out, okay, or it cannot be used in that manner. Now, next we'll go to the surface water resources. Now, everybody just keep in mind that there we find there are two types of water resources. First one is surface water resources, and second one is groundwater resources. Every country has these two types of water resources. Surface water means which can be clearly seen on the surface.
Like you can see the river, you can see the lakes, you can see the ponds. Okay, these are all the surface which you can easily identify. Now, groundwater resources means which are under the surface. We cannot easily see that. Okay, when you dig that inside the surface, you will find that there is a groundwater. We'll first look at surface water resources of India. There are four major, please underline this one: rivers, lakes, ponds, tanks. ये बहुत ही क्लियरली हमें सरफेस के ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। ओके, हमारी कंट्री में 10,000 अप्रॉक्सीमेटली, छोटे बड़े दोनों अगर हम रिवर्स को अगर काउंट करें तो 10,360 रिवर्स हैं हमारे इंडिया में। और इसके ट्रिब्यूटरीज जो हैं, मतलब एक रिवर है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी घाघरा हो गए, गोमती हो गए, कोसी हो गया, महानदी हो गया, यहाँ से यमुना हो गया, सोन हो गया, ये सारे के सारे जो हैं ये 1.6 किलोमीटर एटलीस्ट होते ही हैं या उससे ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मेन रिवर का लेंथ कितना होगा, ठीक है। फाइन। ना मेन रिवर का जो लेंथ है वो 1000 प्लस ही होगा किलोमीटर। द मीन एनुअल फ्लो इन ऑल द रिवर बेसिन। रिवर बेसिन क्या होती है कि वो रिवर का एरिया जहाँ पे एक्चुअली में वाटर प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि ये रिवर का एरिया है बट यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। रिवर बेसिन मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर उस रिवर में है। इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 1869 क्यूबिक किलोमीटर। अगर चारों तरफ, मतलब अगर उस रिवर का अगर हम एक एरिया देखें तो उसका एरिया में कम से कम 1869 क्यूबिक किलोमीटर का वाटर होता ही होता है। However, due to topographical, hydrological, and other constraints, only about 690 cubic kilometer, that is 32% of the available surface water can be utilized. Obviously बात है, सारा का सारा वाटर तो वैसे भी नहीं यूज हो सकता है। तो उस रिवर बेसिन में से आउट ऑफ 1869 690 क्यूबिक किलोमीटर, यानी कि इसका अगर हम देखिए परसेंटेज तो केवल 32% यूज होता है, ठीक है। Water flow in a river depends on size of its catchment area और river basin and rainfall within its catchment area। ठीक है, catchment area का मतलब क्या होता है कि वो एरिया जहाँ पे एक्चुअली जो रिवर का वाटर है वो ड्रेन आउट हो रहा है, मतलब ड्रेन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे जा करके, वहाँ पे जैसे अगर कोई एक होल की तरह है तो वहाँ पे जा करके वो इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ अ कैचमेंट एरिया। ऑब्वियसली बात है, कैचमेंट का मतलब क्या होता है कि एक एरिया जो जहाँ से भी रिवर का वाटर फ्लो हो रहा है वो एरिया को कैच कर रहा है, ठीक है। और रिवर बेसिन का मतलब होता है कितना एरिया है उस रिवर का और कहाँ तक जा रहा है और कहाँ तक वो कैच कर रहा है वो रिवर, उसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया, ठीक है। नाउ इंडिया हैज़ वेरी हाई स्पेशल वेरिएशन एंड इट इज़ मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इज इन मानसून सीजन, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि जो रिवर का फ्लो है मानसून सीजन में थोड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। नाउ जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जैसे रिवर्स हो गए, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र, ये इंडस हो गया, ये तीनों बड़े बड़े क्या हैं, रिवर हैं, ठीक है, हमारे इंडिया में। नाउ given that precipitation is relatively high in the catchment areas of the Ganga, the Brahmaputra, and the Barak river, these rivers, although account for only one third of the total area in the country, has 60% of the total surface water resources, ठीक है। ये जितने भी रिवर हैं, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, बराक रिवर हो गया, ये जो रिवर्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं, जैसे अभी हम देखते हैं इस मैप में थोड़ा, गंगा बेसिन, ये पूरा एरिया गंगा का है, ठीक है। इतने दूर पे गंगा पूरा फैला हुआ है, तो ये बीच में मिडल में उसका गंगा का बेसिन है। ब्रह्मपुत्र को देखेंगे, स्टार्ट तो तिब्बत से होता है एंड एंड बांग्लादेश से जाकर के बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट होता है। इसी तरीके से अगर बराक रिवर का देखेंगे तो वो भी ब्रह्मपुत्र की जस्ट पैरेलल है, ठीक है। सो ये जो तीनों के तीनों जो रिवर्स हैं, ये क्या है, 1/3 एरिया ही कंट्री का कवर करते हैं, मतलब 1 TI जगह जिसको बोलते हैं। लेकिन इसका बेसिन और इसका कैचमेंट एरिया इतना ज़्यादा बड़ा है कि 60% जो है ये टोटल सरफेस वाटर का पूरा कवर करते हैं। मतलब इनकी चौड़ाई, लंबाई तो है ही लेकिन चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है। Much of the annual water flow in South Indian rivers like Godavari, Krishna, and Kaveri has been harnessed, but it is yet to be done in the Brahmaputra and the Ganga basin. ठीक है, जो ये रिवर्स का नाम अभी हमने पढ़ा, जैसे साउथ इंडिया के रिवर्स हैं, गोदावरी, कृष्णा हो गए, कावेरी हो गए, इसे हम यूज़ में ला सकते हैं। इन्हें जितना रिक्वायरमेंट है उसके वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, गोदावरी बेसिन,
कृष्णा, कावेरी, ठीक है। लेकिन अभी तक जो ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिन है उसको अभी किसी तरीके जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया या उस किसी और यूज़ में हो गया अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, वो हम अभी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्या है, एरिया बड़ा है एंड द वाटर इज़ टू मच, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम उसको उतने अच्छे तरीके से अभी यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में। टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री इज़ दिस मच, मतलब अभी तक जो ख़त्म हुआ और अभी तक जो चल रहा है वो 432 क्यूबिक किलोमीटर का एरिया है हमारे ग्राउंड वाटर का जो इंडिया में है। ओके, जिस हिसाब से हम रिवर बेसिन का पानी यूज़ करते हैं उसके उससे कहीं ज़्यादा हम ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में भी और इंडिया में भी, ठीक है। तो उसका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो जितने भी फार्मर्स हैं वो क्या है, ज़रूरी तो नहीं है कि सारे रिवर के आसपास में ही अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो कर रहे हैं। तो जो भी फार्मर्स हैं जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया या फिर नॉर्थ इंडिया एरिया में रह रहे हैं जो गंगा या किसी और रिवर से काफ़ी दूर है, तो वो इरिगेशन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इरिगेशन ज़्यादातर ग्राउंड वाटर इरिगेशन होता है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर का जो यूज़ होता है रिवर से काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे ट्यूबवेल हो गया, हैंड पाइप्स हो गए। ओके, सो ये इस तरीके से ये लोग इरिगेशन का टैंक्स हो गए, ये सारी चीज़ें वो बनाते हैं, वेल्स हो गए, ठीक है। नाउ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, अगर ये क्वेश्चन जो है ये समटाइम्स ये पूछ लेता है, जैसे 1 मार्क में भी पूछ सकता है सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर कहाँ पे यूज़ हुआ है, या फिर एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, ये आपको याद रखना है। ये तीनों के तीनों तो आपस में सटे हुए हैं तो इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तो है ये PHR करके या PRH, जैसे भी आपको सही लगे वो आप याद कर लो। और नीचे का एक स्टेट है तमिलनाडु, उसे आपको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं। कुछ स्टेट हैं जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला, ये हो गया, दे यूज़ ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर ग्राउंड वाटर पोटेंशियल्स। ये जो करंट स्टेट्स हैं ये इनसे कम, काफ़ी कम यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर। स्टेट्स जैसे गुजरात हो गए, यूपी हो गया, बिहार हो गया, त्रिपुरा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये जो है ये ग्राउंड वाटर का मॉडरेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें अपने कुछ कुछ वेस्टर्न ईस्टर्न स्टेट्स को देखें, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सदर्न केरला में देखें तो ये लोग काफ़ी कम इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड वाटर का। और जो बीच के स्टेट्स कुछ आ रहे हैं जैसे यूपी हो गया, गुजरात हो गया और इधर से बिहार हो गया, त्रिपुरा हो गया और महाराष्ट्र, ये सारे बहुत ही मतलब ना ही ज़्यादा और ना ही कम यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर को। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यूज, अगर जो स्टैटिस्टिक्स है वो आगे भी चलता रहा तो जो डिमांड है वाटर का वो क्या हो जाएगा, उसको सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मीन्स द डिमांड्स फॉर वाटर वुड नीड द सप्लाई। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसके लिए लोग डिमांड तो करेंगे ही, तो सप्लाई की ज़रूरत होगी। Such situation will be detrimental to development and cause social upheaval and disruptions. Obvious सी बात है, जब ये सारी प्रॉब्लम और ये जितनी भी वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है, वाटर की कमी की प्रॉब्लम जो है वो अगर अराइज होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डेली एक्टिविटीज़ हैं और जो कंट्री है उसके ऊपर इफ़ेक्ट होगा ही होगा। ओके, अब आते हैं लगून्स एंड बैक वाटर्स। ये लगून्स एंड बैक वाटर्स क्या होते हैं, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। ये स्पेसिफिकली इसलिए ये टर्म्स दिए गए हैं ताकि इसको आपको बस ये जान लो कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये सब का, और कौन से स्टेट में लगून्स और बैक वाटर्स पाए जाते हैं। ओके, इंडिया हैज़ अ वास्ट कोस्ट लाइन एंड 7,517 किलोमीटर तो है ही इंडिया का, और इंडेंटेड इन सम स्टेट्स, सीधा सीधा नहीं है, जैसे जिगजैग मैनर में है, ठीक है। तभी पोर्ट्स वगैरह जो हैं इजीली स्टे कर पाते हैं कोस्टल एरिया में,
थोड़ा तो जिगजैग है, इंडेंटेड है, एकदम सीधा सीधा कोस्ट लाइन नहीं है. Due to this, a number of lagoons and lakes have formed. The states like Kerala, Odisha, and West Bengal have vast surface water resources in these lagoons and lakes. So lagoons क्या होते हैं आपको मैं बता दूं. जैसे एक लैंड एरिया है जो कि बिल्कुल किनारे है, ठीक है. अब यहाँ पे ये लैंड एरिया जो इतना थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा सीधा नहीं है. अभी हमने पढ़ा इंडेंटेड है, तो ये सीधा नहीं हो करके थोड़ा ऐसे जिगजैग जिगजैग मैनर में हो जाता है, ठीक है. तो वो क्या होता है कि जो लैंड एरिया है वो काफ़ी आगे जाता है, फिर यहाँ से इधर ऐसे आगे जाएगा, फिर इधर से और आगे जाएगा. तो ये जो बीच वाला जो एरिया है जहाँ पे गैप है, वहाँ पे ये जो वाटर जो ऑलरेडी प्रेजेंट है चारों तरफ, यहाँ पे भर जाता है. तो भरने की वजह से एक छोटे छोटे लेक्स की तरीके से कन्वर्ट होता है. ओके. सो वो उसको जो डीप एरिया जो है उसमें जब वाटर जो है वो कलेक्ट हो जाता है, उस एरिया को बोलते हैं लगून, ठीक है. सबसे ज़्यादा ये सारे स्टेट्स में ये पाए जाते हैं, इसे आप अंडरलाइन कर लो. Although water is generally brackish in these water bodies, it is used for fishing and irrigating certain varieties of paddy crops, coconut, etc. तो ये सारी चीज़ों वाटर जैसे लगून्स हो गए, इसको हम यूज़ तो नहीं कर सकते हैं ड्रिंकिंग के लिए पर्पस के लिए, बट ये फिशिंग वगैरह के लिए, इरिगेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आता है, ठीक है. ओके. बैक वाटर्स क्या होते हैं आपको एक छोटा सा एक मैं एग्जांपल दे जैसे केरला का बैक वाटर्स, दे आर वेरी वेरी फेमस. ओके. बैक वाटर सिंपली यही है कि जैसे जो ये अरेबियन सी है और जो उसका वाटर अवेलेबल है वहाँ पे, वो क्या होता है कि वो फ्लो कर रहा होता है, सारे जितने भी कोस्ट लाइन एरिया है वहाँ से वो डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है वाटर बॉडी. तो ये सारे कोस्टल एरिया को इतना प्रॉब्लम नहीं होता है. जब भी हाई टाइड या लो टाइड होते हैं तब इफ़ेक्ट होता है बीच वाले एरिया को, अदरवाइज़ वो अपने फ्लो में रहता है, ठीक है. अभी क्या होता है कि जो केरला है यहाँ पे जनरली ज़्यादातर जो वाटर होते हैं, जो अरेबियन सी का वाटर है, वो अपोजिट साइड नहीं फ्लो करने के बजाय वो क्या करता है, उसी लैंड एरिया की तरफ फ्लो करता रहता है. तो इससे एक फ़ायदा है कि वो ऑटोमेटिकली वाटर जो है वो बैक वाटर से वो जो वाटर है वो इरिगेटेड एरिया को पहुंचा रहा है. दूसरा, अगर वाटर जो है वो लैंड मास की तरफ अगर फ्लो करेगा तो फिशरमैन वगैरह को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा. हाँ, लेकिन प्रॉब्लम भी आ जाती है जब हाई टाइड्स वगैरह आते हैं, ठीक है. तो वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कोस्टल एरिया को. ओके. सो वही बैक वाटर है कि मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं फ्लो करके वो पीछे पीछे की तरफ जा रहा है, तो उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आते हैं. दो इट इज़ गुड फॉर समथिंग लाइक फिशिंग वगैरह, पैडी, और जो क्रॉप्स को ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो हेल्प करता है डेफिनेटली. वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके. थैंक यू एवरीबॉडी.